हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरल पे स्वागत है। तो आज हम 12th CBSE का इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका मेथड है। तो ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा लॉन्ग है, और कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है इसको सोल्व करना है, क्योंकि इसके लिए फिर हमें डायरेक्ट काफ़ी सारे फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट इसी इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसमें आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, ना तो y के इक्वल में करना है, ना x के इक्वल में करना है, ना एक फंक्शन के ओवर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। dx d by dx is equal to 16 and differentiation with respect to x. So the x differentiation of x square is 2x to the power 2 minus 1, and the differentiation of x is dx upon dx 1, and the y square. So just example, x square 2x to the power 2 minus 1, and the differentiation of x is dx upon dx is always 1. So we have only y square. We compare with this equation, 2y to the power 2 minus 1, and the differentiation of y is always be dy by dx. आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। तो देन आगे differentiation of y square is 2y to the power 2 minus 1, and the differentiation of y is always dy by dx is equal to 60, and the differentiation of constant is always be 0. So the answer is 2x to the power 1, 2y to the power 1, dy upon dx is equal to 0. Then dy upon dx minus 2x upon 2y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, minus x upon y. So this is an implicit differentiation. In some times we have more than one y in the equation, so we can directly solve without any method. So here is another question, question number 2. So the equation is 2x plus 3y is equal to sin y. Again 2 is constant, dx upon dx plus 3 dy upon dx. The differentiation of y is always dy by dx, and d by dx of sin x, and the differentiation with respect to x. So the differentiation of x is always 1, and 3 is constant, and the differentiation of y is always be dy by dx, and the sin x is always be cos x. So the answer is cos x minus 2 upon 3. Similarly, the third question is given. So third question is x plus by square is equal to sin y. Simply arranging this equation, a is constant,
dx upon dx, b is again is constant, d by dx of sin y, and the differentiation of y always be dy by dx, and differentiation with respect to x. So the differentiation of x is 1 and b is constant, and the y square is again 2y to the power 2 minus 1, and the differentiation of again y is dy by dx, and the sin y is cos y, and again dy by dx. So we have a 2 dy by dx. देन हम को दोनों को एक साइड पे ले जाएंगे और जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स बिकम कॉमन, देन वी हैव कोस वाई माइनस 2yb इज इक्वल टू a. to yb. This is the final answer. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x प्लस वाई. अगेन यहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे, एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x plus d by dx of y. Differentiation with respect to x. x constant है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना. dy by dx is equal to, and the differentiation of x is always be 1 plus y into 1, that means y plus, and the y square is 2y and dy upon dx, and the differentiation of 10x is sec square x, and again dy by dx. So we have a 3 dy by dx. So we take the common, then we have x plus 2y minus 1. This become negative, x square minus y, and the answer is x square x minus y upon x plus 2y minus 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सबसे पहले आपको फिर से इसको अरेंज करना होगा. ये अरेंज हो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगेन वाई कॉन्स्टेंट dx by dx and plus d by dx of y square and d by dx of 100, and differentiation with respect to x. तो आप लोगों को पता है द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एंड एक कांस्टेंट है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. Plus again the differentiation of x is 1, that y into 1 means y, and the differentiation of y square 2y, and the y is dy upon dx, and the differentiation of constant is always 0. हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, ये दोनों साइड उधर ले जाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो आंसर आएगा dy upon dx is equal to 2x plus y upon x plus 2y. Similarly, sixth question. Question number 6 is x square plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 80. तो यहाँ पे सिंपल इसको अरेंज करना है और यहाँ पे चेन रूल लगा देना, प्लस एक्स स्क्वायर बिकम कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स प्लस, चेन रूल में हमेशा प्लस आता है, ध्यान रखिएगा. फिर अगेन एक्स कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर प्लस देन फिर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 81। अब हम इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, देन एक्स स्क्वायर अगेन इज कॉन्स्टेंट, then differentiation of y always be dy upon dx plus y is constant and the differentiation of x square is 2x to the power 2 minus 1 plus again x constant and the differentiation of y square is 2i to the power 2 minus 1 and the differentiation of y is dy by dx plus y square constant, the differentiation of x is 1 and the y cube is 3y square and the differentiation of y is dy by dx and the 81 is 0। अगेन फिर हम इन सबको dy by dx को कॉमन लेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो सेम एज इट इज ऊपर वाले में हमने इसमें प्रोसेस किया था। इसको आगे सोल्व करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर एंड द डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, और फिर इसका हम यहाँ पे अगेन चेन रूल से करेंगे। तो x हो जाएगा कांस्टेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अगेन कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन डी एक्स एंड डी पाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका x स्क्वायर वाली टर्म से करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो साइन वाई के होल स्क्वायर का हो जाएगा, सबसे पहले हमें इसको फिर से अगेन x मानना पड़ेगा। तो इस x स्क्वायर का होता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1, देन फिर हम इस x का आगे करेंगे तो 1, बट एक्चुअल में यहाँ x नहीं है, यहाँ पे साइन वाई है। सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई इज कोस, एंड अगेन फिर y आ रहा है, तो इस y का हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको इसको बताता हूँ सोल्व करके अलग से। देखिए जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 एंड देन इस x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो कैंसिल आउट होगा बना। अब इसकी जगह हमें दे दिया साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई या साइन वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको फिर से अगेन x एज्यूम करके करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, देन फिर इस x का आगे किया था तो 1, बट वी हैव अ साइन वाई, सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई। जब तक आपको y नज़र आ रहा है तब तक आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करते चले जाना है, देन लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये इसका हमारे पास सोल्व करने वाला ये आ जाएगा, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इस कोस वाई या कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स एंड अगेन एक्स कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y is dy upon dx प्लस y एंड द कांस्टेंट का हमेशा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है, तो इसका हमने 0 कर दिया। अब हमें यहाँ से इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा सॉल्व करने पे। लेट्स सी, तो ये हमें दिया हुआ है 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 2y की, माइनस इसको सिंगल पॉलिनोमियल करेंगे एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देन ये माइनस है, देन इस प्लस को क्या बना देगा अगेन माइनस वाई साइन एक्स वाई। अब हम ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को उधर सॉरी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास ये साइन 2y की आइडेंटिटी बनी जाएगी हमारे पास, और ये हमारे पास आएगा साइन एक्स वाई।
ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से आपको ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो इसमें जितने डी वाई बाई डी एक्स आएंगे तो आपको किसको वाई के इक्वल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए इक्वेशन फॉर्म में, और जितने डी वाई बाई डी एक्स आए उन सबको एक साइड एल एच एस या आर एच एस में ले जाके कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन बताता है कि हमें इसको वाई के इक्वल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ cos y whole square. First of all we should arrange the equation. Up now differentiation with respect to x. Again इसको x कंसिडर करेंगे जो हम हमेशा करते हुए हैं। x कंसिडर करने से क्या होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था साइन y का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे हम इसका साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो देन सेम ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स एंड दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स इज ऑलवेज भी 1। ये सेम एज इट इज़ हम इसको फिर से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन एक्स, यहाँ देखिए आप differentiate this sin x is cos x and again similarly cos y का whole square, so that become 2 cos y and the differentiation of cos y is minus sin y and the differentiation of this y is dy upon dx is equal to 0। ये यहाँ से 0 माइनस नेगेटिव हो जाएगा इसको, तो ये हमारे पास साइन 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी। सिमिलरली ये बन जाएगी हमारे पास साइन 2y की आइडेंटिटी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन ये नेगेटिव उधर जाके हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। सो द आंसर इज साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन कंसिडर करके उसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना है। आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, बेसिक फंडे आने चाहिए और अरेंज, अगर आपको अरेंज करना आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आज हमने इसके CBSE के 8 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, तो उसके मैं कुछ एक बार फिर से आपको फॉर्मूला बता दूंगा। तो जब तक किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को शेयर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे नए नए लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।